Good morning, student. Standard 7, textbook page number 277, chapter number 15, visualizing solid shape. Okay, now let's start this chapter. We have to complete year 14. This is the last chapter. Introduction. Plane figures and solid shape. In this chapter, you will classify figures you have seen in the terms of what is known as dimension. In our day-to-day life, we see several objects like books, balls, ice cream cones, etc. around us which have different shapes. One thing common about most of these objects is that they all have some length, breadth and height or depth. That is, they all occupy space and have three dimensions. They are called three dimensional shape. बस थ्री डायमेंशनल शेप के बारे में आपको पता ही है कि दे हैव लेंथ, ब्रीथ, हाइट एंड डेप्थ. मीन्स आप बॉल है, बॉल हाथ में ले रहे हो तो बॉल देखिए वो प्लेन के अंदर वो जगह रोकता है, बराबर. तो उसकी पास हाइट भी, लेंथ भी है, ब्रीथ भी है, हाइट भी. इस तरह से आप क्यूबॉइड देखो, क्यूब देखो, बराबर, कॉन शेप देखो, तो दिस ऑल आर द थ्री डायमेंशनल शेप. एंड थ्री डायमेंशनल शेप हैज़ faces, and this faces is square, circle, rectangle, and this faces is called the plane figure. Try this. Match the shape with the name. It is so much easy. आपको पता ही है, फिर भी आप नोटबुक में ये सारे थ्री डायमेंशनल शेप ड्रॉ करेंगे और उसके सामने उसका नेम लिखेंगे. बट दिस इज सिलेंडर, दिस स्फीयर, दिस क्यूबॉइड, क्यूब, this cone and this pyramid. You should draw this in your notebook and write the correct name beside them. Next page. Try to identify some objects shaped like each of these. By a similar argument, we can say figures drawn on paper which have only length and breadth are called two-dimensional. We have also seen some two-dimensional figures in the early classes, but these are the two-dimensional figure. It has only the length and breadth. They don't have a depth or height. इसका नहीं होता है. It has only the faces. So all this shape you know very nicely. You should draw it in your notebook and write their name. This is the quadrilateral four-line figure. This is also quadrilateral, but it has a name, square and rectangle. It is the quadrilateral. So draw this all and write their name. We can write 2D. 2D means two dimension and 3D means three dimension. These all are the 2D figure and this will all the 3D figure, three dimension. Now faces, edges and vertices. Well, all of you remember these words. कि भाई आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ का फेसिस क्या होता है. एजिस मीन्स व्हाट, जो कॉर्नर है, टू लाइन सेगमेंट, टू एजिस विल बी मीट इन अ कॉर्नर. दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स. दिस साइड इट इज कॉल्ड एजिस एंड दिस इज द फेसिस. जो आप सामने से देख रहे हो, मतलब साइड से देख रहे हो, दिस ऑल आर द फेसिस. फेसिस आर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल लाइक दिस. And this edges means the line segment and vertex means the point. It is the corner. The cube has 8 corners. See this, 1, 2, 3, 4. This side 5, 6, 7 and 8 vertex. 8 vertices. Vertex means singular, vertices means plural. 8 corners. It has 12 line segment means 12 edges. See this, 12 edges. This 1, 2, 3, 4. This 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 edges. Edges is the skeleton of the cube. And the 6 flat square surface. And this 1, 2, 3, 4, this side 5 and back side is the 6 faces. The faces is the skin of the cubes are its faces. Edges means what? It is the skeleton. And faces means skins of this skeleton.
तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट फेसिस, एजिस एंड वर्टाइसिस। रिकॉल योर मेमोरी। आपके घर में जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, कंपास बॉक्स है, लंच बॉक्स है, वो सब चीज़ें है, उसको हाथ में लेके उसकी वर्टेक्स, एजिस एंड फेसिस काउंट करने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज, डू दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। दिस इज़ द क्यूब। क्यूब की ये फेसिस, एजिस एंड वर्टाइसिस हमने यहाँ पे ये पेज पे देखा ही है, तो आंसर इज ऑलरेडी गिवन। 6 faces, 12 edges and vertices. This is like pyramid, triangular pyramid. So it has how many faces? 4 faces. 1, 2, 3 और नीचे का जो बेस है वो 4 faces. Now एजिस, एजिस काउंट करते हैं तो ये 1, 2, 3, ये 4, 5, सेम इसी तरह से यहाँ पे होगी एक साइड, वो है 6। और उसकी वर्टाइसिस, वर्टाइसिस मीन्स ये कॉर्नर्स, तो ये 1, 2, 3 एंड 4 कॉर्नर्स पिरामिड है। नाउ दिस इज, ये देखिए उसका बेस है क्यूब और टॉप साइड इट्स अ ट्रायंगुलर। तो इसका आप काउंट करते हैं तो ये दोनों को आप मर्ज करके भी देख सकते हो कि भाई ये क्यूब है, क्यूब के फेसिस है 6 और इसके है 4, तो एक उसमें से कम हो गया, फिर भी काउंटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये 1, हाँ फेसिस उसके देखने हैं, फेसिस तो ये क्यूब के फेसिस आपके पास 6 फेसिस थे और ट्रायंगल के 3, 1, 2 एंड 3, तो 9 फेसिस हो गए। उसकी एजिस देखे, एजिस टोटल 16 एजिस है। ये नीचे के क्यूब है उसकी 12 एजिस और ऊपर की ये 13, ये 14, 15 एंड 16 और उसकी 16 एजिस है। अच्छे से आप आपके ऐसे आप नेट से बनाएंगे, पेपर फोल्डिंग से बनाओ और फिर उसका फेसिस, एजिस और वर्टाइसिस काउंट करने की कोशिश करो। ये वर्टाइसिस उसकी 9 है। अब यहाँ पे देखिए ये क्यूब है पर उसका ये कॉर्नर कट कर लिया है, उसको ट्रायंगल बना दिया है। तो क्यूब के फेसिस आपके 6 थे और ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो इट इज़ 7 फेसिस। यहाँ पे 12 एजिस थे क्यूब के और उसमें ये 3 एजिस और ऐड हो गए, ये 13, 14 एंड 15। फिर सेम इसी तरह से वर्टाइसिस उसका देखेंगे, वर्टाइसिस 8 था, अभी और 2 वर्टाइसिस अंदर ऐड हो गए तो वो बन गए 10। तो यहाँ पे ये टेबल 15.1 आप अच्छे से समझ के करेंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये डायग्राम आपको दिया जाता है और उसमें से फेसिस, एजिस और वर्टाइसिस आपको फाइंड आउट करना होता है। कैन यू सी दैट द 2 डायमेंशनल फिगर कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फेस द 3 डायमेंशनल शेप? फॉर एग्जाम्पल अ सिलेंडर मीन्स जो 2 डायमेंशनल फिगर है उसका फेसिस 3 डायमेंशनल शेप का हो सकता है, तो ऐसा है भाई, यस। तो सिलेंडर, द सिलेंडर हैज़ 2 फेसिस विच आर सर्कल एंड अ पिरामिड शेप लाइक दिस हैज़ ट्रायंगल फेसिस। पिरामिड के भी ट्रायंगुलर फेसिस है। वी विल नाउ ट्राई टू सी how some of 3D shapes can be visualized on a 2D surface that is on paper. In order to do this, we would like to get familiar with 3-dimensional object closely. Let us try forming this object by making what are called net. अभी नेट की मदद से आप ये सारे 3 डायमेंशनल शेप कैसे बनते हैं वो देखेंगे। तो नेट फॉर द बिल्डिंग 3D शेप। देखो आपके पास ऐसा बॉक्स है, अगरबत्ती, सोप या किसी का भी बॉक्स है, मैच बॉक्स, उसको आप अच्छे से धीरे से खोलेंगे, टूट ना जाए इस तरह से। तो इस तरह से ओपन करेंगे, वो आपका कार्डबोर्ड बॉक्स रेडी हो गया। एंड दिस इज द फ्लैट सरफेस। अभी वो फ्लैट सरफेस को आप वापस फोल्ड करेंगे, इट शुड बी मेक द 3 डायमेंशनल शेप, इट इज़ द क्यूबॉइड शेप। तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे उसका कितना फेसिस है, एजिस है और उसके वर्टेक्स है। तो नेट इज अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन इन 2D। तो नेट क्या है, 2D फिगर है और इट इज़ वन काइंड ऑफ स्केलेटन है विच व्हेन फोल्डेड रिजल्ट इन 3D शेप। नेट को आप फोल्ड करेंगे, आपका क्या बन जाएगा, इट इज़ 3D शेप। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। 2-4 बॉक्स लेके आप इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, ओपन करेंगे
Have you got a net? By suitably separating the edges is the reverse process possible? आपके पास ऐसी कोई नेट है कि जिसको आप रिवर्स प्रोसेस करके वापस 3D शेप बना सकते हो. Here is a net pattern for a box, figure 15.5. Copy an enlarged version of the net and try to make the box by suitably folding and gluing together. You may use suitable unit. The box is a solid. It has a 3D object with the shape of a cuboid. Similarly, you can get a net for a cone by cutting a slit along in slant surface. मीन्स यहाँ पे ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें ये जो 6 नंबर लिखे 3 नंबर लिखे उनको आपको स्टिक करना है, मर्ज करना है, उसमें से आप क्यूबॉइड शेप रेडी करना है. ये फ्लैट सरफेस है क्यूबॉइड की, उसमें से उसको फोल्ड करके उसको कनेक्ट करके ग्लू से आपको क्यूबॉइड रेडी करना है. तो ये नेट है. और यहाँ पे कौन शेप का आपके पास नेट रेडी किया गया है. ये कौन शेप है ऊपर का उस पेपर फोल्डिंग से बनाया है, और ये नीचे का उसका सर्कुलर शेप है. दिस इज द नेट ऑफ द क्यूब एंड दिस इज द नेट ऑफ द सिलेंडर शेप. ये पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग से आपको खुद नेट बनाना है और उसको फोल्ड करके मर्ज करके वापस 3D शेप रेडी करना है. We could also try to make a net for the making a pyramid like Great Pyramid in Giza. That pyramid has a square base and triangle on the 4 side. देखो ये पिरामिड का नेट है. It has a square base and 4 triangular faces. तो आप इस तरह से पेपर फोल्डिंग से कट करेंगे, पिरामिड का नेट रेडी करेंगे. नेक्स्ट पेज, ट्राई दिस एक्टिविटी. हियर यू फाइंड 4 नेट्स. देयर आर 2 करेक्ट नेट्स अमॉन्ग देम टू मेक टेट्राहेड्रॉन. सी इफ यू कैन वर्क आउट विच नेट विल मेक अ टेट्राहेड्रॉन. मीन्स ये एक्टिविटी है, उसके लिए आपको पेपर में ये ड्रॉ करना है, उसको फोल्ड करना है. यहाँ पे जो एजिस है वहाँ से फोल्ड करके आपको एक्टिविटी देखनी है कि कौन सी नेट करेक्ट है, कौन सी नेट में से आपका टेट्राहेड्रॉन शेप रेडी होता है. टेट्राहेड्रॉन मीन्स 4 एजिस, 4 फेसिस, 4 फेसिस से उसका शेप रेडी होता है. तो यहाँ पे इसको फोल्ड करके देखा है मैंने. तो ये फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का जो है नेट, दिस इज द करेक्ट पोर्शन, करेक्ट नेट, एंड सेकेंड एंड थर्ड इट इज़ द रॉन्ग नेट. उसमें से टेट्राहेड्रॉन शेप शुड नॉट बी रेडी. टेट्राहेड्रॉन मीन्स आपने देखा है ना, दूध का जो पैकेट होता है, मिल्क पैकेट, वो कभी टेट्रा पैक में मिलता है. ये बड़ौदा डेयरी दूध नहीं, वो कार्डबोर्ड का पैकिंग होता है जो 3-4 महीने तक खराब. तो ऐसा जो पैकिंग है उसे टेट्राहेड्रॉन शेप बोलते हैं. इट शुड बी मेक फ्रॉम दिस नेट. एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 1. आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब. कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट एंड ट्रैप इट. और आपको ये पेपर्स में कट करना है, उसको फोल्ड करना है, उसमें से कौन सा नेट करेक्ट फॉर्म कर रहा है, करेक्ट क्यूब शेप बनाता है. तो ये फाइंड आउट करना है, ये एक्टिविटी है. तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 6 नंबर की जो है नेट, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द क्यूब. ये फर्स्ट एंड फोर्थ में से आप, फर्स्ट और फिफ्थ में से आप क्यूब शेप रेडी नहीं कर सकते. तो आप इसको फोल्ड करेंगे अच्छे से, और ये एक्टिविटी सबको करना ही है. एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 1. आप नेट कट करेंगे, आपकी बुक में उसको स्टिक करेंगे ताकि अच्छे से नेट आपको याद रहे. ओके, ओवर.